बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब ये चैप्टर समझ लो कि ये जितना भी आएगा, हम जितना पढ़ाएंगे उससे कुछ एक शब्द बाद में आएगा। एक एक्सपर्ट वेरिफिकेशन नहीं है, हम देख लेते पूरा टेक्स्ट लागत। चलो सर्किट डायग्राम, इसमें जो वेरिएबल्स होगा वो भी देखना है आपको, रेजिस्टेंस देखना है, डिपेंडेंस भी करता है वो देखना है, रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस में पैरेलल सीरीज है। चलो ठीक है, वेरिएबल्स तक बताते हैं कि सर्किट है, इलेक्ट्रिक पावर है और क्वेश्चन आंसर है बना देते हैं। चलो खत्म। फिर से एक तरह से समझो शुरू से जो पढ़ाया उसको फिर से अलग से ओम्स लॉ भी है। ओम्स लॉ का एक्सपर्ट वेरिफिकेशन नहीं है, इसलिए वो जाना नहीं है, खाली ओम्स लॉ है, एक्सपर्ट वेरिफिकेशन नहीं है क्या? थोड़ा सा है करवा दें। चलो ठीक। My dear students, the chapter which the CBSE have reduced, and the chapter which the chapter which in the syllabus is electricity and magnetism, and also I told you earlier that refraction and refraction when eye is removed. Okay. Now let's start. We will not have to kill the time. Let's come to the points. Electricity. As you are knowing, I told you earlier that there is in the chemistry and the biology, in the physics, and one chapter that's the natural resources. Including natural resources, in the physics there is 31 marks, and remaining marks in the biology and chemistry. There is 80 marks. Electricity. I have told you earlier, electricity. What is electricity? This is the question very important. I have told you what is electricity. Again, write down your copy. Write down. It's SIU. This question will be asked in serious. The question is that how much marks it will be? 2 marks. Answer is that because this video is very important, this class is very important. Very simple. The rate of flow of electric charge per unit time cross section here. You know the definition of speed, rate of change of distance. You know the definition of velocity, rate of change of displacement. You know the definition of acceleration in the class 9, rate of change of velocity. Here is the rate of flow of electric charges, electric charge per rate time. Definition of same types, and it is very easy to remember. This is you write your answer is like that. This is a conductor. AB is a conductor. A current is flowing through it. I is the current flowing through it. And if you write down, if Q amount of electric charge is flown in time t, then by definition, I, that's the electric current.
equal to what is U by T. So I is it's your SI unit of charge is how much? Coulomb and is your second and it is nothing but ampere. So SI unit of दिखता है ना? SI unit of current electricity. क्या होता है? एम्पीयर. देखा तुम लोगों ने? Have you read? Write down, my students. Write down. After 10 bar. So what is after their bar? What is? After their bar. What is electricity? Write down its SI unit. I am repeating whole things. Answer: the rate of flow of electric charge per unit time through a cross-sectional area. ठीक है? A each conductor, I is electric current. If Q amount of electric charge is flowed, in time T, then by definition, D you have definition, I electric current is Q by T. I then Coulomb second, that's the ampere, and SI unit of electric current is how much? Ampere. Any problem anyone have? Yes. पीछे हटो बता सब पीछे वो ठीक है दो बार Okay, already written. Already written. ठीक है. खाली क्या लिखा है? SI unit of electric charge. Coulomb का एक साइंटिस्ट था, उसी के सम्मान में हम Coulomb करते हैं. How much 1 Coulomb में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.6 ठीक है, लिख लिया? पहले लिख के फिर से हो गया?
Third question. So third. What is electric field? What is electric field? Field in electric field intensity. Or what is electric field or electric field intensity? Write down its SI units. Write down its SI unit. This is very important. As you are studied in the class 9, in surrounding of a mass, there is a gravitational field. In the same way, in surroundings of a electric charge, there is an electric field. किसी चार्ज के चारों का जो रीजन्स है वहाँ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा कि एनीवन आस्क यू इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक होता है? इट गोज अप टू द infinity. Electric field goes up to the infinity. But when the distance increases, its strength क्या होगा? जैसे जैसे दूर जाओगे क्या होगा? इसका स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. नेचुरल. ठीक है. तो अब है कि इसको मेजरमेंट कैसे करेंगे? इन देरी आंसर देखो इन द रीजन देखो in the region surrounding of an electric charge, surrounding of an in the region in surrounding of an electric charge, where electric force due to that charge can be experienced. Sir, electric force Can be experienced is known as electric field. If a unit positive charge, if a unit positive charge, ब्रैकेट थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, इट विल बेटर फॉर यू. इफ पैराग्राफ चेंज कर दो, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज experiences a force F, due to Q charge, due to Q amount of charge, then अब लिखो then electric field intensity E is F by Q. तो लोग समझो बेटा, कुछ नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? ये तो अब है कि Q कोई चार्ज है और कोई चार्ज है. इसके सराउंडिंग्स में क्या होगा? कोई दूसरा चार्ज लाएंगे. ये कोई Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है. वी आर ब्रिंगिंग ए अनदर पॉजिटिव चार्ज. ठीक है लगाएगा, बोलेगा उसको खोलो. ठीक है.
बेटा अगर if you have a q amount of charge, if you have a in surrounding of it, इसके चारों ओर, ठीक है, इसके चारों ओर क्या होगा, एक रीजन है, क्षेत्र है जहां इसके कारण कोई फोर्स फील किया जाएगा। कौन फील करेगा? कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज फील करेगा। कोई अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इस पर नहीं हो, वो फोर्स फील नहीं करेगा। ठीक है, मान लो कि Q पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तुमने कोई नेगेटिव चार्ज या तो कोई पॉजिटिव चार्ज दूसरा कोई या Q ले आया, क्या करेगा? इसको क्या करेगा? क्या करेगा इसको? रिपेल करेगा। अब तूने इसको कोई माइनस चार्ज लिया है तो क्या करेगा इसको? अब इसमें भी देखो, ये आगे क्लास में पढ़ोगे, इससे आगे का पढ़ने का इसमें नहीं है, तो जितना नहीं पढ़ने का वो बताएंगे। तो कहता है कि क्यों नहीं, कहता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आए पॉजिटिव चार्ज, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, जो फोर्स अनुभव करेगा, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मान लो क्यू चार्ज के कारण एफ फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, तो वन चार्ज के कारण क्या होगा? एफ बाय सेम हुए, तो क्या होगा? ऐसा यूनिट्स क्या होगा इसका? ये क्या होता है? ये होता है कूलम, सॉरी ये क्या होता है? न्यूटन। ये क्या होता है? न्यूटन। ऐसा यूनिट का ऐसा यूनिट SI यूनिट ऑफ E। ये तुम क्लास में जब जाओगे फिर याद हम क्लास में जब बैठोगे तो सोचोगे प्रोफेसर बताए थे, ये तुमको क्लास में ही पढ़ना है। ठीक है, और ये तुमको सीबीएसई में 10th में भी आ सकता है और 12th में भी आ सकता है। ठीक है, सीबीएसई में 10th में भी आ सकता है कि ई का बताइए आप ऐसा यूनिट्स क्या होता है, और 12th में भी आएगा, सेम क्वेश्चन आएगा। ये मेडिकल में भी आ सकता है, इंजीनियरिंग भी आ सकता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ ई क्या हो? न्यूटन पर। खत्म? नहीं कोई दिक्कत? n बाई, उसमें चार ऑप्शंस दे देंगे तुम्हें, n बाई सी, n इंटू सी, n स्क्वायर बाई सी, कुछ दे देगा, तो तुमको अगर रिमेंबर हो गए करोगे तो हो गया, खत्म। अच्छा, थोड़ा सा इन अदर वर्ड्स देखो, दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ चेंज करके लिखो, थोड़ा सा अच्छे से लिखो कॉपी में, तो लगेगा तुमको कि अब तुम खराब ना लिख देगा कहानी की तरह नामों से आपको फिर दिक्कत है। देखो अदर वर्ड्स क्या वर्ड डेफिनेशन? इन अदर वर्ड्स डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DEF कर दो, उतना क्या लिखेगा? DEF का डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, खाली E लिख दो, कैपिटल E। डेफिनेशन ऑफ E क्या होगा? देखो, द फोर्स एक्सपीरियंस, याद रखना है, तो क्या तो वो पूछेगा टीचर खट से बड़ा बता दो, लेसन बन जाएगा। ठीक है, देखो फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस देखो ED लगा दो, बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज in an electric field is known as electric field intensity। तुमने क्या देखा कि जितना बड़ा चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? अरे हम गलती तो लिख दिया, ठीक है, और F is equal to QE, राइट, ठीक है, तो हाँ ये ठीक है, F by Q, F is equal to क्या होगा? Q। अब देखो ध्यान देना, ये F क्या है? फोर्स है। कौन फोर्स फील करेगा? ये Q अमाउंट फोर्स फील करेगा, Q अमाउंट फोर्स के E क्या होगा? E तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, E अगर मान लो, ध्यान सुनो, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि तुरंत तुमको लगा कि तूने बोला जैसे बड़ा चार्ज होगा तो इसका ये घट जाएगा, वैसे लग रहा है, लेकिन नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? कि जैसे ही तुम्हारा Q चार्ज F क्या होता है? F क्या होता है? Q इंटू E, तो Q बढ़ेगा तो F क्या होगा? बढ़ जाएगा ना, अगर मल्टीप्लाई करें अगर Q बढ़ेगा तो क्या होगा? F भी बढ़ेगा, तो यहाँ F बढ़ेगा, क्या होगा? F
बढ़ेगा ना, इसलिए घटना हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसका यानी लेकिन ये क्या होता है, डिपेंड करता है किस पर, क्यू पर। क्यू पर क्या करता है, वैसे तो क्वाइट नेचुरल है, जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगा फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि तुमने कूलम्ब्स लॉ में कल पढ़ा था, बताया था तुम लोग F इक्वल टू Q1 Q2 है आज इसको उतना ही जानना है, इतना हमको पढ़ना है। देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकदम ये अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरा शब्द आ गया, as you know water flow from higher level to lower level, it doesn't matter how much amount of water they will have। मान लो तुम्हारे पास तालाब है, तालाब का लेवल है वाटर का, तुम एक टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लोगे और उसे एक पाइप लगा दोगे, क्या करेंगे तालाब में, पॉन्ड में, तो वाटर कहाँ फ्लो करेगा, ट्यूब से नीचे ना, ये हायर लेवल पे, ये अमाउंट ऑफ वाटर पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम नहीं कर सकते कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम हायर अमाउंट ऑफ वाटर टू लोअर अमाउंट ऑफ वाटर, इट डजंट मैटर, ठीक है। इन द सेम वे मैंने बताया था हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, एज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव्स या electric charge moves from higher potential to lower potential, and movement of electric charge is known as electric current। जब चार्ज मूव नहीं करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक करंट हम नहीं कर सकते, ठीक है। when charge is static, जब चार्ज स्टैटिक होता है तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, पढ़ना है हमको 11th में। लेकिन जब चार्ज मूव करने लगता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेटा ये बताओ व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यानी अब टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस है, कितना गर्म है ये व्हाट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस। तुम ये एक चीज याद रखना, तुम अच्छी यूनिवर्सिटी है क्या, डिग्री कितना होता है, 1 kg कितना होता है, अरे गधे, तो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री चाहे सेल्सियस हो चाहे फ़ारेनहाइट हो, डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, डिग्री तो एंगल भी होता है, अरे डिग्री से थोड़ा काम चलेगा, 1 डिग्री कितना होता है, 1 डिग्री तो एंगल भी होता है, टेम्परेचर तो हॉटनेस और कूलनेस दोनों में आता है। हाँ क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ नेगेटिव, पहले से पढ़ रहा है हम अगर माइनस ना भी पढ़े तो मेरा काम चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा, हम कहेंगे 4 में हम जोड़ रहे हैं -3, 4 में हम जोड़ रहे हैं क्या, ठीक है। तो क्या होता है सब्सट्रैक्शन, ये हम कर रहे हैं 4 डिवाइडेड बाय 3, ओके नहीं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है। क्या मैं तो क्या हुआ, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन इज स्पेशल केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इन द सेम वे डिग्री ऑफ हॉटनेस नहीं हुआ, ठीक है। टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है कितना हॉट है वो, ठीक है, ठीक है। अब तुम क्योंकि टेम्परेचर ये कॉम्परेबल सब्सटेंसेस, मान लो कि कोई अगर हम क्या कहते हैं तुम्हें बुखार है, ठीक है, और कोई नॉर्मल टेम्परेचर का आदमी तुमको छूता है, ठीक है, तो तुमको लगा कि तुमको उसको लगा कि काफी गर्म है, ठीक है। या मान लो एक बार है कि एक वो काफी गर्म सब्सटेंस है उसमें हाथ डाले, फिर उससे थोड़ा गर्म सब्सटेंस में हाथ डालेंगे तो क्या होगा, हमको कूल फील होगा ना।
इट इज ए कंपैरेटिव स्टडी, हाथ छू के टेम्परेचर बताता है, दैट्स ए कंपैरेटिव स्टडी। तो कंपैरेटिव स्टडी मतलब इससे थोड़ा पता चल जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये डिग्री ऑफ हॉटनेस का मतलब होता है दैट इज द कंपैरेटिव स्टडी, दैट इज द। और डिग्री मतलब डिग्री एंगल में भी होता है। डिग्री अब तुम लोग ओके, आई विल नॉट हैव टू मूव अदर देन द सिलेबस। क्या होता है ये देखो, जब गामा की कलम देखो, ये क्या है डिग्री सेल्सियस, ये क्या है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, लिख दो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है। ये क्या है बीपी ऑफ वाटर, बीपी ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, ये सेल्सियस है, ये सेल्सियस है। ये है 273 1.6 केल्विन, ये 373 केल्विन। ये क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन स्केल है। ये क्या है, ये है फ़ारेनहाइट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये डिवीजन कितना है 180 है। लिखो, अभी पूछ लिया तो अच्छा है, लिखो ब्रैकेट मार के लिख दो। अब जो पूछा वो याद नहीं रखेगा, लेकिन तुम लोग याद रखना। क्या रे मनीष, याद रखेगा? कल पूछेंगे हम तुमको। क्या लिखा है, हमारा स्केल है। हम चाहे तो किसी मास को हम लोग क्या कर सकते हैं, किलो भी नाप सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं पाउंड में भी नाप सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम था 1958 के पहले, किलो की शेर में भी नाप सकते हैं, पाव शेर कर्मा चौथी, ठीक है, उसे नाप सकते हैं। यहाँ क्या है, ये क्या है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है। क्या है सेल्सियस स्केल पे कितना इसका 0 डिग्री, ठीक है। और ये क्या 100 डिग्री सेल्सियस क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इसमें पानी क्या होता है वेपोराइज होने लगे, ठीक है। खोलता तो 60 डिग्री पे ही खोलने लगता है, ठीक है। ये क्या है केल्विन स्केल पे क्या है 273.16, इस पे डिग्री लगता है, ठीक है। कितना होता है दोनों के बीच का डिवीजन कितना है 100 केल्विन। ये 373 1. क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये क्या फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट क्या 32 डिग्री, जो थर्मामीटर तुम देखते हो कितना बॉडी टेम्परेचर है, क्या 98.2, क्या फ़ारेनहाइट है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है, ये 5-6 का फार्मूला है, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या होता है फार्मूला होता है C/5 = F - 32/9। ये C क्या है सेल्सियस, F क्या है फ़ारेनहाइट। अगर कहेगा 40 डिग्री सेल्सियस को हाउ मच कितना होगा, हाउ मच फ़ारेनहाइट 273 अरे कहीं कहते 273 क्या होगा, तो केल्विन में होगा ना, वो केल्विन में होगा तब 273 + 40। हम तो इसमें जोड़ रहे हैं ना, इस फ़ारेनहाइट में ना। तो फार्मूला दिए तुमको, फार्मूला क्या दिए, इसमें क्या करेंगे 40/5 F - 32/9। इसको मल्टीप्लाई क्या होगा, तो 5 F क्या होगा 32 + 32 क्या होगा 104। ये हुआ। और अगर केल्विन स्केल में जोड़ेंगे, केल्विन स्केल में जोड़ तब करेंगे क्या 40 जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे 273 में 40 जोड़ देंगे, ठीक है। ये लोअर क्लासेस में था, तुम लोगों को पढ़ना था, लगता है कहीं पढ़े होगे, केमिस्ट्री पढ़ा है ना। फटाफट लिखो, मेरे पास टाइम नहीं है, आई विल नॉट हैव टू किल द टाइम, आई हैव टोल्ड यू आई विल फिनिश दिस चैप्टर, जस्ट फिनिश, ओके। लिखा ब्रैकेट मार के लिखा नहीं, चलो। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लिखो आंसर लिखो। वर्क डन, लिखो आंसर, वर्क डन इन ब्रिंगिंग work done in bringing a unit positive charge from infinity to a particular point, from infinity to a particular point is known as electric potential. क्या बच्चा मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा कि भाई एक चार्ज को 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो वर्क डन करना पड़ता है, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मान लो कि कोई सबस्टांस है, ठीक है, हमने एक केजी का सब्सटेंस उठाया और इस टेबल पर रख दिया, तो हमने जो वर्क डन किया उस 1 केजी के सबस्टांस पे वो स्टोर गया, किसमें स्टोर गया टेबल पे स्टोर गया, उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, ठीक है। वो चाहे तो क्या करेगा, इसको उठाए
ट्राई वर्क डन किए तो क्या आता है? तूने पढ़ा है P इक्वल टू, कौन बताएगा? M G H। लोग ये बताता है, हम लोग पढ़े इस क्लास में जो स्टूडेंट थे तो याद अपना रिपोर्टेशन हमने वर्क डन कितना किया? हम अब चाहे कि अब इसको नीचे ठीक है एनर्जी लेके नीचे आया, ठीक है, तो वही बात होता है वहां भी कि तुमको मैंने बताया था कि अगर समझ रहे हो कि अगर कोई Q पॉजिटिव चार्ज है, प्लस चार्ज है, कोई तुम दूसरा चार्ज लेके आ रहे हो, मान लो कि Q1 है, Q2 लेके आ रहे हो, ये भी क्या है? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तुम लेके तो इसको आने देगा या क्या? तो क्या करना पड़ेगा? तुमको पकड़ के लाना पड़ेगा, ठीक है? तो यू शुड हैव टू वर्क, तो क्या करना पड़ेगा? यू शुड हैव टू वर्क, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एज एनर्जी। तुम जो काम करोगे वह एनर्जी के रूप में इसमें क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम Q अमाउंट को लाए, मान लो कि अब है कि अगर Q अमाउंट को लाने में हमको W वर्क डन करना पड़ा, Q अमाउंट ऑफ चार्ज को लाने में W वर्क डन करना पड़ा, तो एक चार्ज को लाने में कितना पड़ेगा? W बाय Q। गुड, वेरी गुड। हमारा डिफिनेशन क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहोगे सर काम कैसे करना पड़ेगा? देखो काम करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? ये इसको रिपेयर कर रहा है, नहीं देगा तुम तो क्या करोगे? खींच के लाओगे ना घड़ी। तुम्हें देख पहले जो टॉय कार होता है, टॉय कार में क्या करते हो? घर में क्या चाबी देते हो ना, चाबी देते हो, छोड़ देते हो, क्या होता है? दैट हम वर्क देते हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी देने के बाद क्या होता है? वो अपने आप चलने लगता है। तो फिर हमारा जो वर्क डन दिया हुआ है खत्म हो जाए तो फिर नहीं चलने लगता है वो, ठीक है? द सेम वे चलो मूव करें। If W amount of work is done, if W amount of work is done in bringing Q amount of charge, in bringing Q amount of charge, then potential V is bracket में लिखो by definition, then potential V क्या by definition क्या होगा? W by Q, ये क्या V क्या हो? असाइनमेंट क्या होगा? असाइनमेंट असाइनमेंट V क्या हो? ये लिखो क्या? जूल क्या? जूल पर सेकेंड, दैट इज योर तब बोल्ड हो पूछेगा असाइनमेंट ऑफ हाँ हाँ सर गुड वेरी गुड जूल पर कूलम लिख लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा? एसआई ऑफ V क्या होगा? जूल पर कूलम। तो क्या करते हैं हम लोग? वोल्ट करते हैं। इफ J इक्वल टू 1 ठीक है बच्चों, ठीक है ना? हाँ अब देखो राइट डाउन द नेम ऑफ द डिवाइस हु मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है? वोल्टमीटर। देखो वोल्टमीटर इज द डिवाइस हु मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? देखो व्हाट इज ओम्स लॉ पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम पढ़ाएंगे। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हाट इज ओम्स लॉ? Describe and give its experimental verification.
give its experimental verification. बचपन देखो छात्र कितना है 35 क्या बता रहा था मैं? Ohm's law. What is Ohm's law? This guy will give his experimental verification. Yes, sir. चलो, relax करो.